ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖੱਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1948 ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਗੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1971 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। जाना कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना बरसों की तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना कुछ पल की जिंदगानी। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਨੀਰਜ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ USA ਵਿਖੇ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਗੋਇਲ ਉੱਘੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਤਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਲਾਪੜਾ ਸੀ। ਆਪ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਆਪ ਜੀ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ख्यातिन गुप्ता, अंकित गुप्ता, अखिल गोयल, निखिल गोयल, श्रेया गोयल, दिवेश गोयल नाल महक रही है। आएगी वो घड़ी जब
का तेरे एक दिन सारा हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तू, ये सोच ले अभी तू, फिर वक्त नहीं आना बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, कुछ पल की जिंदगानी। खुल जाए नींद जब भी, समझो तभी सवेरा। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਬਾਲਾ, ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਕੇਸ਼ਵ ਗੋਇਲ, श्री बलबीर कुमार, रिचा गर्ग, रश्मि गोयल, ख्यातिन गुप्ता, अंकित गुप्ता, अखिल गोयल, निखिल गोयल, श्रेया गोयल, दिवेश गोयल ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ शिव मंदिर हाल गांधी चौक शाहकोट ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। आज से 13 रोज पहले उषा जी, उषा गोयल, रेड श्री बाबा राम जी के धर्मपत्नी गौरी शंकर केशव जी और एक बेटी जो कि इस समय अमेरिका में है, इनकी माता अपने सांसारिक कार्यों धर्मों को जितने वो लेकर के आए थे उनको करके धराधाम को छोड़ करके अपने कर्मों के मुताबिक भगवान के चरणों में जा विराजे। शरीर का जो धर्म है उसके मुताबिक उसका संस्कार हो जाता है, लेकिन जो अन्य कार्य हैं, गर्भ पुराण की कथा है या पिंडदान करवाणी है, ये सब आत्मा की शांति के लिए है। क्योंकि आत्मा ही सबका पात्र है, आत्मा से ही आत्मा का संबंध है। शरीर से शरीर का संबंध तो तब तक है जब तक शरीर में आत्मा बैठा है। जब आत्मा इस शरीर का त्याग कर देता है तो उसके उपरांत ये शरीर घृणित हो जाता है, दुर्गंधयुक्त हो जाता है, निंदित हो जाता है। इसीलिए इसको जल्दी से जल्दी अग्नि के अर्पण कर दिया जाता है। जब तक चेतना, जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर है, तब तक ये चलता है, फिरता है, खाता है, व्यवहार करता है, हंसता है, बोलता है, सोचता है, विचार करता है। लेकिन जब इसके अंदर से वो चेतन आत्मा अलग हो जाता है, सूक्ष्म पुतले से निकल जाता है, तो ये शरीर जो है इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। या तो इसको अग्नि के अर्पण कर दिया जाता है तो राख बन जाती है। यदि इसको कोई हिंसक पशु खा ले, शेर आदि, तो उसके पेट में जाकर के विष्ठा बन जाती है। और यदि
इस शरीर को निर्जन स्थान में रख दिया जाए तो इस शरीर में जीव पैदा हो जाते हैं, शरीर के अंदर ही जीव पैदा हो जाते हैं और वो कीड़े इसको खा करके मिट्टी बना देते हैं। तो 3 अवस्थाओं को प्राप्त होने वाले इस क्षण भंगुर शरीर के ऊपर जीते जी आदमी कितना अभिमान करता है, मेरा मेरा करता रहता है, मेरा घर है, मेरी स्त्री है, मेरा भाई है, मेरी दौलत है, मेरा मकान है। लेकिन ये संसार में जो हमें प्राकृतिक आंखों से दिखाई दे रहा है, जो ये जितनी भी हमें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ये क्षीण होने वाली हैं, एक दिन ये समय आने पर नष्ट हो जाएंगी, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन आत्मा शाश्वत है, अजर है, अमर है। आत्मा न कटता शस्त्र से है, आग से जलता नहीं, सूखे न आयु, आत्मा वायु से जल से कभी गलता नहीं। आत्मा किसी चीज से कट नहीं सकता, गल नहीं सकता, सूख नहीं सकता, इसको कोई मार नहीं सकता आत्मा को। लेकिन आत्मा के साथ में जब जीव जुड़ जाता है, जीव आत्मा, वो जीव आत्मा होता है कि किए हुए कर्म जो हैं वो आत्मा के साथ में है और उन कर्मों को भोगने के लिए उस आत्मा को यहाँ इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। यहाँ पर आकर के वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों को भोगता है। बहुत अधिक बुरे कर्म करने से पशु योनि मिलती है, वृक्षों की योनि मिलती है, जलचर जीवों की योनि मिलती है, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की योनि हमें भोगनी पड़ती है। लेकिन जब मिश्रित कर्म हो जाते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, उनको भोगने के लिए हमें मनुष्य की योनि मिलती है और मनुष्य की योनि में आकर के हम उन अच्छे और बुरे कर्मों को भोगते हैं। जिस चीज के साथ जैसा जैसा हमारा संबंध होता है, जैसे जैसे कर्म किए होते हैं हमारे, उसके मुताबिक हम उन आदमियों को, उन रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को सुख भी देते हैं और हमारे कारण उनको दुख भी उठाना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ आदमी पिछले कर्मों को भोगते भोगते अगले जन्म के लिए भी कर्म करता है। 2 प्रकार से आदमी जीता है, एक पिछले किए हुए कर्म जो लेकर के आया है उनको भोग रहा है और दूसरा वो आगे जन्म जो मिलने वाला है उसके लिए कर्म कर रहा है। हम ऐसे समझ सकते हैं कि पिछले जो कर्म हैं वो अचनचेत जो हमारे से बन गया, जबरदस्ती बन गया, अचनचेत हमें लाभ हो गया, ना चाहते हुए हमें हानि हो गई, ना चाहते हुए हमारे से कोई बुरा कर्म हो गया, अच्छा कर्म हो गया। ये सब क्या है? ये पिछले जन्म के किए हुए जो हम साथ में लेकर के आए हैं वो है। और जो हम जानबूझ करके कर रहे हैं, जानबूझ करके हम काम, क्रोध, लोभ, अहंकार में आकर के कर्म कर रहे हैं, वो ये समझ लीजिए कि आने वाला जो हमारा जन्म है उसको हम बना रहे हैं। कैसा जन्म हमें लेना है, अगला जन्म, उसके लिए हम कर्म कर रहे हैं। तो कर्म जो है सोच विचार करके करनी चाहिए, क्योंकि सब आदमी अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी है। यदि आदमी शत्रु है अपना तो वो बुरे कर्म करता है और अपने आप से मानो वो शत्रुता कर बैठा और वो बुरे कर्मों के अंदर पड़ जाता है। लेकिन जो आदमी अपने आप से मित्रता करता है, यानी अपनी आत्मा को परमात्मा का रूप जान करके यही समझता है कि मैं ये मनुष्य का जन्म भगवान ने जो मेरे को दिया है, इस ही जन्म में मैं अपना उद्धार करूंगा, दोबारा जन्म नहीं लूंगा। वो फिर कर्म ऐसे करता है कि वो ये सोच करके करता है कि
चाहे मिश्रित कर्म है, हमें भोगने के लिए आना ही पड़ेगा। मृत्यु लोक में जैसा कर्म है वैसी योनि हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जो निष्कर्म हो जाते हैं, यानी कि हम कर्म तो करते हैं लेकिन भगवान के लिए करते हैं। हे भगवान, ये पिछले जन्म में देखो, एक मैं कथा या गौरी शंकर जी के घर में गरुड़ पुराण की कथा कर रहा था। वहां पर भी मैंने एक बात बताई थी कि बड़े महाराज जी वृंदावन में किसी के घर भिक्षा लेने के लिए गए। जब भिक्षा लेने के लिए गए तो एक बहन आई, हाथ में चप्पल उठा करके, और उनका हाथ पकड़ा और कहने लगी कि वहां उधर जाओ। तो महाराज जी परेशान नहीं हुए, उनको कोई गुस्सा नहीं आया। जैसा उस माता ने कहा था, जिधर कहा था उधर ही चल पड़े। और थोड़ी दूर आगे जाकर के देखा कि एक माता हाथ में थाल सजा करके हर प्रकार की मिठाई भोजन तैयार करके सामने खड़ी है और कहने लगी कि महाराज आओ मेरे से भिक्षा ले लो। तो भाई, आदमी का जो किया हुआ है वो उसको मिल जाता है और ना चाहते हुए भी मिल जाता है। लेकिन आदमी को कर्म करने में स्वतंत्रता है कि जैसा मर्जी कर, लेकिन फल देना भगवान के हाथ में है। इसलिए पहले सोच विचार करके कर्म करना चाहिए। इसलिए कहते हैं पहले तोड़ो फिर बोलो, क्योंकि एक बार जो मुंह से शब्द निकल गया वो दोबारा नहीं आता है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया हो जाती है। जैसा शब्द आप बोल रहे हो उसी प्रकार की प्रतिक्रिया हो जाती है, क्योंकि ये संसार एक आईना है। जैसा आप मुंह बनाते हो उसी प्रकार का चेहरा आपको आईने में, शीशे में अपना नजर आता है। इसलिए संत महापुरुषों ने एक दो शब्द रखे, मैं आपके सामने रख रहा हूं, बड़े ध्यान से श्रवण करना। करे जा राम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। अरे बाबा ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। अरे बाबा ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। करे जा राम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर। ये होगा एक दिन मुर्दा, ये होगा एक दिन मुर्दा। इसे कीड़ों ने खाना है। ये होगा एक दिन मुर्दा, इसे कीड़ों ने खाना है। अरे भाई ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। करे जा राम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। महल ना साथ जाएंगे, ना जाए बाग बागीचे। महल ना साथ जाएंगे, ना जाए
गिरना हाथ आना है, करेजा राम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है। ये इंतजार मत करना कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, जवानी में तो पैसे कमा लें, जैसे तैसे बुढ़ापे में प्रायश्चित कर लेंगे। ये बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर अपनी मौत से कोई बसर नहीं, समान 100 वर्ष का और पल की खबर नहीं, न जाने कब चला जाए आदमी कोई पता नहीं है। सदाना अस्पताल में चले गए, छोटा भाई बीमार था। डॉक्टर साहब कहने लगे कि पंडित जी आपको बीमारी नहीं है, थोड़ा घबरा गए हो। छोटा भाई शायद बैठा होगा, आप घबरा गए हो, चिंता मत करो, जब वो आएगी तो चाहे घबराओ और चाहे ना घबराओ, वो साथ में ले जाएगी। कहने लगे कि थोड़े दिन पहले की बात है, एक मेरे पास में आया व्यक्ति, उसका बेटा उसके साथ में था। उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे पिताजी हैं, कृपया एक बार इनको देख लो। उन्होंने इशारा किया और मैं उठ करके उनकी तरफ आने लगा। अभी मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा, हाथ पकड़ने से पहले ही सिर नीचे, गर्दन नीचे हो गई। जब मैंने उसको एकदम भाग करके उसकी गर्दन ऊपर उठाई तो वहीं पर राम नाम सत्य हो गया। तो एक मिनट के अंदर ही आदमी की मृत्यु हो गई। इसलिए इस बात के भर में मत रहना कि बुढ़ापे में माला जाप कर लेंगे, बुढ़ापे में कीर्तन कर लेंगे, भजन कर लेंगे। यदि भाई बुढ़ापे में सब कुछ हो जाता तो फिर पहली क्लास में बच्चे को दाखिल कराने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अगर आप जवानी में ही, बल्कि बचपन में ही, जैसे प्रहलाद भगत ने बचपन से ही भगवान के भजन का अभ्यास शुरू कर दिया, जैसे ध्रुव भक्त ने बचपन में ही भगवान का भजन शुरू कर दिया और बचपन में ही भगवान को प्राप्त कर लिया, खटवांग राजा ने 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। लेकिन उसके लिए बहुत बड़े विश्वास की जरूरत है। ऐसे ही 2 घड़ी में भगवान नहीं मिल जाते हैं। एक कोई भक्त चले जा रहे थे, उसने आगे देखा एक कुआं है, सोचा कि मैं पानी पी लूं। जब पानी पीने के लिए गया तो देखा कि एक महात्मा अपने पांव को रस्सियों से बांध करके नीचे लटका हुआ था। तो उसने महात्मा से कहा कि महात्मा आप उल्टे क्यों लटके हो? वो कहने लगा कि मेरे साथ में बात मत कर। अरे मैं तो भगवान का भजन कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ। ने कहा कि भोला भाला आदमी था। कहने लगे कि भक्ति करने से भगवान मिलते हैं, तो भगवान मिल जाए तो क्या देंगे? अरे वो कहने लगा ये मूर्ख, अगर भगवान मिल गए तो दुनिया की कोई वस्तु उनसे मांग लो, वो मिल जाती है। कहने लगे ठीक है। उनकी बात को सुन करके आगे चल दिया। आगे देखा एक कुआं और था, लेकिन वो खाली था, उसमें कोई लटका हुआ नहीं था। उसने सोचा कि यहाँ पर मौका है, लेकिन इधर उधर देखा, रस्सी नहीं मिली। उसने कुसा उखाड़ करके एक रस्सी बनाई और रस्सी बना करके अपने पांव को बांध करके घास फूस की रस्सी ऊपर बांध करके नीचे लटकने लगा। नीचे छलांग लगा दी। जो उसने छलांग लगाई तो ही भगवान ऊपर से आ गए। भगवान ने आकर के उसको कुएं के अंदर जाने से पहले ही बाहर निकाल
बिना भगवान के बंदे, बिना भगवान के बंदे, ना तेरा कोई ठिकाना है। बिना भगवान के बंदे, ना तेरा कोई ठिकाना है। करेगा राम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है। अरे बाबा ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। करेगा राम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है। गुरु सच्चिदानंद भगवान की। तो भाई जो है उस कुएं में जैसा वो संत महापुरुष कर रहे थे, उसी प्रकार अगले कुएं में जाकर के उसने कोशिश की करने की। घास फूस की एक रस्सी बनाई, पांव को बांध करके नीचे छलांग लगाई। भगवान ने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके उसको सामने खड़ा किया और कहने लगे कि भाई क्यों मरने जा रहा है। वो कहने लगा कि भगवान मैं मरने नहीं जा रहा, मैं तो भक्ति करने जा रहा था। वो कहने लगे कि भाई ऐसे भक्ति नहीं होती है। भक्ति तो भगवान का भजन करने से होती है, कीर्तन करने से होती है। 9 प्रकार की भक्ति होती है, ये कौन सी भक्ति है। कहने लगा मेरे को नहीं पता कितने प्रकार की होती है। जैसा पीछे संत महापुरुष कर रहे थे मैं तो वैसा ही करने जा रहा था। वो कहने लगे कि भगवान की प्राप्ति के लिए मैं ऐसा कर रहा था। वो कहने लगे कि मैं ही भगवान हूँ। कहने लगे उसको 6 महीने हो गए, रस्सी बांध करके लटका हुआ है, अब तक भगवान नहीं मिले। लेकिन मेरे को तुरंत मिल गए। लेकिन मेरे साथ में कौन सी रिश्तेदारी है भगवान की, मैं कैसे मालूम कि तुम भगवान हो। भगवान ने कहा अरे भोले आदमी, उसकी रस्सी तो अगर वो 7 जन्म भी लटका रहे तो भी टूटने वाली नहीं है। लेकिन तुम्हारी तो ये घास फूस की रस्सी है, अरे तुम छलांग लगा दी, अगर नीचे चले जाते तो मेरे नाम पे तुम कुर्बान हो जाता। लोग मेरे को ताने देते, अरे तुम्हारे नाम भगवान के नाम पे आदमी कुर्बान हो गया, भगवान ने उसकी रक्षा नहीं की। भगवान तो शरणागत वत्सल हैं, तो इसलिए मैं ही भगवान हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, यदि आदमी विश्वास रखे, विश्वास करे भगवान के ऊपर, तो भगवान कहीं और नहीं है, हमारे पास में ही है। संतों ने लिखे तो सब मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि मन भजले हरि का नाम ये जीवन 2 दिन का। कि मन भजले हरि का नाम ये जीवन 2 दिन का। महल दो महला माल खजाना, महल दो महला माल खजाना, ये सब साथ न होगा जाना। महल दो महला माल खजाना, ये सब साथ न होगा जाना। आएगा न कोई काम ये जीवन 2 दिन का। आएगा न कोई काम ये जीवन 2 दिन का। मन भजले, अरे मन भजले हरि का नाम ये जीवन 2 दिन का। अपने मन को कहने लगे, संतों से किसी ने सवाल किया कि महाराज मन नहीं लगता। संतों ने कहा कि भाई किसी को लगा लगाया मन आज तक मिला नहीं, हमने भी अपने मन को लगाया, आहिस्ता आहिस्ता समझा करके लगाया। तुम भी इसी प्रकार आहिस्ता आहिस्ता उसको अभ्यास के द्वारा भगवान के चरणों में लगाओ तो लग जाएगा। कहने लगे कि महाराज आप तो इतनी दुख सहन कर लेते हो, आपको तकलीफ नहीं होती। संतों ने कहा कि तकलीफ भी होती है, लेकिन हम सहन कर लेते हैं। हमने अपने आप को इस ऐसा ढाल लिया है कि खुद तकलीफ आ जाए, दुख आ जाए, हम उसका तकलीफ का दूसरों के सामने बखान नहीं करते कि मेरे को ये तकलीफ है। लेकिन आपको थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो फिर हाय मर गया, वो मर गया, माँ मर गया, बाप मर गया, बस न जाने क्या क्या कहने लग जाते हो। इसलिए विचार करो कि स्त्री पुत्र पिता और भाई, स्त्री पुत्र पिता और भाई,
ये सब होंगे न कोई सहाय, स्त्री पुत्र पिता और भाई, ये सब होंगे न कोई सहाय, जब निकलेंगे तन से प्राण, ये जीवन 2 दिन का, निकलेंगे जब तन से प्राण, ये जीवन 2 दिन का। उन्हें अति सत्कार जो मंच के विराजमान पंडित माधवराव जी ने गरुड़पुरा से इंसान पैदा होने को लेके अंतिम यात्रा संसारक यात्रा जो पूरी इंसान कर जाता उसके लिए अपने प्रवचन के विस्तार पूर्वक व्याख्या की। अज आप सारे साढ़े बहुत सत्कारयोग चाची जी उषा रानी गोयल, पत्नी स्वर्गीय साढ़े चाचा जी बाबा राम जी को अज असी उस मां के चरणों के शरतां के फुल भेंट करने इतने इकट्ठे हो। बेशक वो अपनी संसार की यात्रा पूरी करते हुए परमात्मा के चरणों में जाग रहे। संक्षेप जी बीमारी कारण अज सारे सदीवी विछोड़ा दे के उस परमात्मा के चरणों में जाग रहे। संसार में जड़ा इंसान आया उन्हें जाना एक दिन, क्योंकि आप सारे कुदरत का दस्तूर आ जड़ा पुरानी मौत लोग दे विच आ गया उसकी वापसी भी जरूर आ। मरण लिखाई मंडल में है, जो है सो चलसी बाणी में लिखिया सबकी आई बात है। जदों जदों सानू बुलावा आ जाता जाना ही पैना, पर बैठे मेरे छोटे भरा गौरी शंकर जी, केशव जी, जदों परिवार के पिछों मां चली जाती मैं समझदा वो बेड़े जिहड़े है वो बेड़े भी सुनहरे हो जाते बने गए। मां के रुतबे बारे इतिहास के ग्रंथों के कवियां ने बहुत कुछ लिखा। मां का जरा देना इंसान जिंदगी भर दे नहीं सकता। जे जन्नत देखिए तो मैं समझता दुनिया में जितने मर्जी चल जाओ, जन्नत जी हैगी आ वो मां के चरणों के विच। तकरीबन 20 साल पहलों साढ़े अंकल बाबा राम जी की परलोक सुधार है। इस मां ने, क्योंकि बच्चे भी उदों 20 साल पहलों छोटे थे, 2 फर्ज अपने पूरे करके बच्चों को इस काबिल बनाया। जो मैं समझदा साधु राम जी या बाबा राम
ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਮਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੈ। पर सिर्फ बहुत सत्कारयोग मेरे बाप समान तरसेम मित्तल जी बैठे हैं, बीजेपी स्टेट मेंबर भी है, नगर कौंसल के प्रेजिडेंट भी रहे, परिवार के आगू आ, उन्होंने आया हुआ का सज्जन मित्र जिन्हें भी रिश्तेदार धन्यवाद करना। कई बार ऐसे बुलाए होंगे हैं जिन्होंने बुलाना भी जरूरी होंगे। एक परिवार के लिखा टाइम आ लिखा हुआ, एक वक्त जोड़ा पूरा हो चुका, उन्होंने बुलारिया के कोलों मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मंग लूँगा। रेड रिबन क्लब प्रमुख जी बैठे बूटा सिंह भगत साढ़े कौंसलर प्रवीण ग्रोवर जी, शहरी प्रधान कांग्रेस के कमलनाथ जी, लार्ज स्केल के डायरैक्टर पवन अग्रवाल जी, कौंसलर भी है, कचार्टी एसोसिएशन प्रधान भी है, सतीश सांगरा जी बैठे हरियाणा संकीर्तन मंडली बैठो, जसपंच व्यवस्था बैठे मेरे साबका चेयरमैन कमेटी के जगदीश दहला, साबका कौंसलर डॉक्टर गुप्ता जी, साबका कौंसलर समाज के नाल जुड़े हुए मेरे वीर दविंदर सिंह जी वालिया। क्योंकि जे मैं सारे के नाम लवा मेरे सामने जिधर भी मैं देखता सारिया शहर दियाँ इलाके दियाँ महराज शख्सियत इस शोक सभा में विराजमान। मैं सारे को माफी मंग लैनी, बहुत ही मैं नामां की तफसीर ना चाहूँ। परिवार ने साढ़े चाची के उम्मीद कुछ दान राशि भी कटी है, वो संस्थावां वालों शोक मते होर भी है। ठाकर द्वारा गौशाला, सुरेंद्र मोहन जी मल्होत्रा, रामा मंदिर, संजीव अरोड़ा जी, पवन अग्रवाल जी का मैं पहले दसता हरिनाम संकीर्तन मंडली, शाहपुर कलौत एसोसिएशन वालों बैजनाथ जी, संजीव सोगती जी मंडल प्रेजिडेंट बीजेपी, इन्हों का धन्यवाद भी है मैं भी करदा, मित्तल साहब भी करेंगे। कुछ दान राशि कटी गई है। जोगा आश्रम नवा किला रोड शाहपुर, शिवपुरी आश्रम नवा किला रोड हरिनाम संकीर्तन मंडली, गौशाला नवा किला रोड, हनुमान मंदिर मंगल कुमार, बाबा टोपी वाला जी गांधी चौक, माता का मंदिर गांधी चौक, कृष्णा मंदिर गांधी चौक, शिव मंदिर गांधी चौक, शोकमता हनुमान मंदिर वालों भी साढ़े सत्कारयोग ताराचंद जी लैके आए, उन्होंने भी धन्यवाद बेनती करना। साढ़े बहुत सत्कारयोग तरसेम मित्तल जी आउन, जिन्नी भी संगत इतने रिश्तेदार सज्जन मित्र आए हैं, सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੀ। शोक सभा में बैठे प्रभु प्रेमी भक्तों, आज असी सारे मेरी छोटी बहन उषा रानी श्रद्धांजलि देने लिए आए। आज मैं महसूस करता
कि जिथे मैं अपना बचपन कटिया, जवानी कटी, जिस परिवार से बुढ़ापा भी कट रहा, वो टोटा परिवार अज वो महसूस मैं करता कि साडे उस परिवार चो एक जी चले गए। बाबा राम जिहड़ा कि प्रभु का बहुत ज्यादा भगत सी, वो साडे कोलों अज तो 20 साल पहला चले गया। किसी पति का जिस वे आदमी चले जाता और छोटे छोटे बच्चे हों, उस पत्नी को जो मन से रीझां होंदियां वो सारियां बेकार हो जाती। लेकिन वो मेरी भैन ने दिल नहीं छड्डिया, बच्चों को लिखाया पढ़ाया, कारोबार करा के दिते, दलेरी के नाल परमात्मा की उस परमात्मा की ओट के नाल उन्होंने बच्चों की रखवाली करती हुई आप ही चले गए। बहुत औखा होता एक पत्नी का 20 साल अपने आदमी तो बगैर कटना, क्योंकि मेरा जो अपना परिवार है, सारा जीवन इसे परिवार के इसे मदे कटिया। लेकिन जिदा जिदा परमात्मा ने लिखिया उन्होंने बोल नहीं सकता। लेकिन एक मां चले जानी बच्चों की बहुत दुखदाई होता। जो ममता वाली मां चल जाए घर चो ममता का मंदिर खत्म हो जाता। भैन का प्यार मिल सकता, भरा का प्यार मिल सकता, दोस्त का प्यार मिल सकता। जिस वेले मां चले जाती है ममता का प्यार उस बच्चे को नहीं मिल सकता। सो अज मेरी भैन मेरा भरा भी चले गया, बच्चे मेरे सामने बैठे आ, जग्गी होनी, केशव होनी, जिन्होंने मैं हथी चढ़ाया। बेटे इस इलाके च टोडा परिवार मन्निया परिवार सी, कला शाहकोट च नहीं, इस इलाके च मन्निया परिवार से। उन्होंने देख के जिदा तुहाडे बुजुर्गों ने अपना नाम पैदा किया, बिजनेस धार्मिक कामों उन्होंने लाइना से चलता होया अपना जीवन बनाओ। इन्ना कहता होया मैं अपनी भैन को श्रद्धा के पुष्प अर्पण करता हुआ अपना स्थान वापस लेना गया। हाँ, इत्थे अलग अलग सियासी इदारे धार्मिक इदारे के आगू साहब बैठे आ, रिश्तेदार सज्जन मित्र एक शोक सभा च आया। मैं उन्होंने धन्यवाद करता कि उन्होंने परिवार का दुख घटाया। इन्ना कहता हुआ मैं अपना स्थान वापस लेना गया। भरोसे तेरे ही भरोसे में ओ शाम की तू चरणों से अपने न करना
जुदा तू चरणों से अपने न करना जुदा। तेरे ही भरोसे मैं, तेरे ही भरोसे मैं उषा हूँ इशार, तेरे ही भरोसे मैं, तेरे ही भरोसे मैं उषा हूँ इशार। तू चरणों से अपने न करना जुदा, तू चरणों से अपने न करना जुदा। तेरे ही भरोसे मैं, तेरे ही भरोसे मैं उषा इशार। तू चरणों से अपने न करना जुदा, तू चरणों से अपने न करना जुदा। तेरे दर सा कोई ठिकाना नहीं है, तेरे दर सा कोई ठिकाना नहीं है कि इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है, इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है। तेरे दर सा कोई ठिकाना नहीं है, तेरे दर सा कोई ठिकाना नहीं है, इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है, इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है। तेरे दर सा दर है, तेरे दर सा दर है जहाँ में कहाँ। तो चरणों से अपने न करना जुदा, तो चरणों से अपने न करना जुदा। तेरे ही भरोसे मैं, तेरे ही भरोसे मैं उषा हूँ इशार, तेरे ही भरोसे मैं उषा हूँ इशार। तू चरणों से अपने न करना जुदा, तू चरणों से अपने न करना जुदा। भले हैं पूरे हैं दर पे पड़े हैं, भले हैं पूरे हैं दर पे पड़े हैं। नसीब वाले तेरे दर पे खड़े हैं, नसीब वाले तेरे दर पे खड़े हैं। भले हैं पूरे हैं दर पे पड़े हैं, भले हैं पूरे हैं दर पे पड़े हैं। नसीब वाले तेरे दर पे खड़े हैं, नसीब वाले तेरे दर पे खड़े हैं। मुझे अपने दर पे तू, मुझे अपने दर पे तू देना बना। तू चरणों से अपने न करना जुदा, तू चरणों से अपने न करना जुदा। तेरे ही भरोसे मैं, तेरे ही भरोसे मैं उषा हूँ इशार। तू चरणों से अपने न करना जुदा,